Hello students, today we will discuss about the sonometer law of length experiment. Now before proceeding with the actual experiment, we will see that what exactly this sonometer consists of, and then we will proceed with the experiment. Now basically sonometer में होता क्या है? If you can see here, this is a wooden hollow box, and from one of the rigid support a string is passed, which passes over these two knife edges, and after that it is passed over the pulley where it is attached with the load. Now load has mass of capital M, so therefore the tension attached to the string will be given as T is equal to mg. Now exactly होता क्या इसके अंदर है, अपने को एक ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर करना रहता है. Now you can see that this is our tuning fork. These are the prongs. आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा. Now what happens? These prongs they vibrate in and out, and every tuning fork has its own frequency. सबका एक अपना frequency होता है. So after striking this tuning fork, that is making this tuning fork into vibration, we'll keep this tuning fork on the surface of this sonometer. एक बार वो tuning fork को अगर हम लोगों ने surface पे रख दिया ऐसा, so after that what happens? The wire which is given between these two knife edges, they vibrate to form a antinode between these two knife edges. ये आपने superposition of waves में पढ़ा है. You have already studied in superposition of waves. Now this what I have considered, this is the fundamental mode. मैंने ओवरटर्न वाला केस कंसिडर नहीं किया और ओवरटर्न वाला अपने एक्सपेरिमेंट में लेना भी नहीं है. तो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड, द पेपर राइडर विच इज केप्ट ऑन दिस स्ट्रिंग दैट गेट्स कम डाउन. पेपर राइडर जो उसके ऊपर रखा रहेगा वो नीचे आ जाएगा. जिस पर्टिकुलर लेंथ के लिए वो पेपर राइडर नीचे आता है, द लेंथ फॉर विच द पेपर राइडर कम्स डाउन, वी हैव टू मेजर दैट वाइब्रेटिंग लेंथ, and then you have to proceed. Now इस law of length क्यों बोलते हैं इसको? Why it is called as law of length? See, basically the frequency of the vibrating string is given by n is equal to 1 upon 2l under root of t by m. ये इसका फॉर्मूला है, where n represents frequency of this tuning fork, l represents the length between the two knife edges, t represents the tension attached to the string, and small m represents the linear density of the string. Linear density means mass per unit length. Normal जो density होता है mass per unit volume consider करते हैं, here it is linear density. Now in this experiment what we will do doing, law of length में हम लोग basically क्या करते हैं, we keep this tension constant and linear density of the string is constant. दो चीज़ constant रखते हैं, tension as well as linear density. तो इसमें T and M are kept constant. Now if T and M are kept constant, then इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो we can see that n is equal to ये 1/2 अंडर रूट ऑफ t by m हमने साथ में ले लिया, we have kept them together, into 1 upon l. t constant, m constant, 2 constant, that means the whole bracket is itself constant. That means we can say that n is proportional to 1 by l or inversely proportional to the length. अभी inversely proportional to the length है, या फिर इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, और this is also called as nl is equal to constant. और यही अपना law of length है. Here we have to prove that nl for this particular experiment will be constant. And now later on we will see that what is exactly practical to be done. So students, now we will see this sonometer law of length, your actual experiment. और ये है अपना actual sonometer. This is your wooden hollow box. You can see here. Now in this wooden hollow box, these holes are generated. ये holes बनाए हुए हैं इसके अंदर, दोनों साइड में दिख रहा है. This is for the vibration of the air column. Now what we have to do that, ये sonometer हमने रखा है यहाँ पर. From one of the rigid support, the wire is attached, and to another end a load is attached. And if you can see your load, यहाँ पर लोड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हर एक slotted weight 500 grams का है. Each slotted weight is of 500 grams. And at last ये जो हैंगर है, this is of 500 ग्राम, पूरा हैंगर के साथ मिला के 500 ग्राम्स है. फिजिक्स में ऐसी होता है, 50 ग्राम्स का अपने स्टैटिक फ्रिक्शन में देखा होगा, वो भी ऐसी था. तो लास्ट वाला जो हैंगर है पूरा 500 ग्राम का रहेगा. Now in this experiment we have to keep this tension constant. Law of length में अपने को टेंशन कांस्टेंट रखने का है. तो क्या करेंगे, 500 ग्राम्स, अनदर 500 ग्राम्स और एक 500 ग्राम्स, मतलब टोटल अभी इसका लोड कितना होगा 1.5 kg. Now we have to slowly pass over
विद द पुली। ये यहाँ पर पुली दिख रहा है, पुली के ऊपर स्लोली पास करना है और झटके में इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, स्ट्रिंग में गेट डैमेज, स्ट्रिंग टूट सकता है उसके अंदर। ये रखने के बाद दीज आर द 2 नाइफ एजेस, इसी नाइफ एज को अपने को इसके ऊपर रखने का है। ये दूसरा नाइफ एज रखा हमने, ये हो गया अपना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये अपना छोटा सा पेपर राइडर, यू कैन सी हियर, ये छोटा सा पेपर राइडर है, इसी को स्ट्रिंग के ऊपर रखने का है। एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड विल सी दैट हाउ दिस पेपर राइडर गेट्स कम डाउन। ये पेपर राइडर हमने इसके ऊपर रख दिया है, स्लोली इसके ऊपर रखने का। अब एक्सपेरिमेंट में अपने को प्रोसीड करने का है। इफ़ यू कैन लुक एट हियर ऑब्जर्वेशन टेबल, मास ऑफ द हैंगर दिया है। मास ऑफ द हैंगर मैंने जैसा बोला था, इट इज़ 500 ग्राम्स, वो गया कंसीडर। देन टोटल मास कितना था along with the hanger as well as slotted weight in the hanger, it is coming as 1500 grams. Tension applied to the wire, तो T is equal to यही 1500 को अपने को 980 से मल्टीप्लाई करने का है। ये CJ सिस्टम में इसलिए 980 मल्टीप्लाई, ग्राम्स है ना, अगर किलोग्राम होता तो मीटर पर, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। तो अभी ये 1500 इंटू 980 से मल्टीप्लाई किया। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से देखो, टेंशन फिक्स है, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, वाइब्रेटिंग लेंथ 2 बार मेजर करना है, मीन है, उसके बाद 1/L और NL है। अभी अपने पास 5 ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर करने का है, बट बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो अपने लैब में 8 ट्यूनिंग फोर्क होते हैं। एंड दीज आर ऑफ द फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्स, 480 हर्ट्स, 426 हर्ट्स, 384 hertz, 341 hertz, 320 hertz, 288 hertz and 256 hertz। हम लोग नॉर्मली लैब में जो ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं ये 8 ही ट्यूनिंग फोर्क है अपने पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनफैक्ट ये जो अपने पास ट्यूनिंग फोर्क है, दीज आर एज गुड एज योर ऑक्टेव ऑफ योर म्यूजिकल स्केल। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे इधर भी है, ये सा रे ग म प द नी, अगेन सा रिपीट हो गया। इसलिए फिजिक्स में कभी कभी क्वेश्चन होता है कि 512 हर्ट्स इज ऑक्टेव ऑफ 256 हर्ट्स। ये वही रीज़न है कि 256 हर्ट्स क्यों कंसीडर किया है तो ऑक्टेव करके 256 का। तो संगीत में जैसा 7 सुर उसके हिसाब से कंसीडर किया। अब इसमें से अपने को 5 ट्यूनिंग फोर्क दिया रहेगा, 5 ट्यूनिंग फोर्क दिया रहेगा, तो 5 आप कोई भी ट्यूनिंग फोर्क जो भी दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, फिलहाल मेरे पास मैंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर रखा है टू शो यू वी हैव ऑल 8 ट्यूनिंग फोर्क, ये अपने पास 8 ट्यूनिंग फोर्क है। हम इसमें से कोई भी 5 ट्यूनिंग फोर्क सपोज ले लिया, रैंडमली हमने 5 ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर कर लिया, ये 5 ट्यूनिंग फोर्क ले लिया, 3 को छोड़ दिया, कीप इट हियर। अब इस ट्यूनिंग फोर्क को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होता है उसी का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहता है। ये साइज़ सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और इस तरह देखो एज पर द साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा, साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। अभी सबसे पहला जो ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर दिया है, इट इज़ हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्स। ये दिखेगा नहीं, इसकी प्रिंटिंग वैसी है, बट इट इज़ ऑफ 512 हर्ट्स। ये 512 हर्ट्स का ही है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें से एक अननोन अपने को कंसीडर करने का है। तो इसमें से कोई भी एक अननोन, जैसे कॉलेज वाले अगर अननोन दिए रहेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं दिए रहेंगे तो आप बीच का कोई भी एक फ्रीक्वेंसी निकाल के साइड में कर दे। अपने पास 4 ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर किया, 1 by 1 वी हैव टू लुक एट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। अभी पहला वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है, इट इज़ ऑफ 512 हर्ट्स। कलर की वजह से दिख नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कलर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी, बट इट इज़ ऑफ 512 हर्ट्स। नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क अगर कंसीडर करेंगे, लेट मी सी, पहले मैं देख लूँ, इट इज़ ऑफ 426। ये 426 हर्ट्स हो गया। उसके बाद दिस इज 320,
और लास्ट में ये वाला है 256 का। अननोन जो है उसका फ्रीक्वेंसी अपने को नोट नहीं करने का है, वो डैश करके रखना है, इसी का फ्रीक्वेंसी अपने को ग्राफ से कैलकुलेट करना है। सो वी हैव अरेंज दिस। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ट्यूनिंग फोर्क विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कहीं से भी रैंडमली शुरू नहीं करने का। व्हाट जनरली स्टूडेंट डू दैट, जो ट्यूनिंग फोर्क दिया रहेगा उसमें से कोई भी एक ट्यूनिंग को उठा के शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट द प्रॉपर अप्रोच ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपको कभी भी एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करने का, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे भी मैंने 512 का लिया, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। नाउ रिगार्डिंग ट्यूनिंग फोर्क एक चीज़ आप ध्यान में रखो, दिस इज़ वेरी जेंटल इंस्ट्रूमेंट। इसको अगर हल्के से भी अगर ऐसा स्ट्राइक करेंगे ना तो इसके अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। अभी वाइब्रेशन अगर सुनाना रहेगा, आई विल ट्राई टू सी दैट अगर आपको सुनाई देता है क्या। ये वाइब्रेशन हल्का सा इसके अंदर आवाज़ आता है, तो वाइब्रेशन इज गोइंग ऑन। 512 हर्ट्ज का मतलब ही होता है ना कि द प्रोंग्स ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क आर वाइब्रेटिंग एट द स्पीड ऑफ 512 टाइम्स पर सेकेंड। फिर नाइफ एज में क्या लेंथ कंसिडर करने का है। फॉर 512 वी शुड स्टार्ट विद द मिनिमम लेंथ। दैट मीन्स ऑन दिस सोनोमीटर व्हेन द नाइफ एजेस आर केप्ट वी शुड कीप द लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 7-8 सेंटीमीटर रखना चाहिए। उससे ज़्यादा लेंथ अपने को कंसिडर नहीं करने का है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखेंगे तो मैं अप्रॉक्सीमेटली देखो 8.5 के आसपास है। यू कैन सी दैट नाइफ एज के बीच में डिस्टेंस 8.5 के आसपास। थोड़ा सा मैं चाहिए तो और कम कर लूँगा, इसको 7-8 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अभी जब ट्यूनिंग फोर्क आप कंसीडर करें, यू शुड ऑलवेज होल्ड ऑन द ट्यूनिंग फोर्क एट द बेस। आप इसके ऊपर प्रॉन्ग्स को कभी नहीं टच करने का। प्रॉन्ग्स को टच करेंगे दैट मीन्स यू आर हैम्परिंग द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। ये हमेशा बेस पे पकड़ने का है। और स्ट्राइक करते वक्त इट शुड बी इम्पल्सिव फोर्स एट द टिप ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। इम्पल्सिव फोर्स मतलब फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करने का। ऐसा स्ट्राइक करेंगे तो ये वाइब्रेशन शुरू हो गया है। ये हल्का सा स्ट्राइक करने का, ज़्यादा जोर से ठोकने का जरूरत नहीं है। इफ़ यू स्ट्राइक हार्ड देन द पेपर राइडर विल कम डाउन, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर रेजोनेटिंग लेंथ पे लेके जाना पड़ता है और पेशेंस होना चाहिए। स्ट्राइक किया, विल कीप हियर एट द सरफेस ऑफ द सोनोमीटर। अभी बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसा बताते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद आप इधर रखो, इधर रखो। एक्चुअली कहीं पर भी रखो, उसका मतलब सेम है। अभी कॉलेजेस में क्या होता है, अगर इंस्ट्रूमेंट ख़राब रहेगा तो उस केस में क्या होता है, फिर टीचर्स बोलते हैं यहाँ पर रख दो तो वाइब्रेशन होकर गिर जाएगा। बट एक्चुअली वो रेजोनेटिंग इफेक्ट है, कहीं पर भी रखेंगे तो उसको रेजोनेटिंग इफेक्ट होना चाहिए। नाउ विल सी दैट। इसको स्ट्राइक किया, फिर रखा, फिर स्लोली इसको नाइफ एजेस को मूव करना है ना। नाइफ एज को स्लोली मूव करना मतलब नॉट मोर देन 2-3 मिलीमीटर एट ए टाइम। धीरे धीरे सरकाने का, स्लोली इसको मूव करते जाएंगे। हल्का सा मूवमेंट पेपर राइडर में दिख रहा है। हल्का सा मूवमेंट उसमें पेपर राइडर में दिखाई देगा। देखो पेपर राइडर में हल्का सा मूवमेंट दिख रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। वाइब्रेशन उसमें शुरू हो गया है, मतलब वाइब्रेटिंग लेंथ नज़दीक ही अपने। फिर वाइब्रेशन उसके अंदर स्लोली 1-2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं सरकाने का। वाइब्रेशन और थोड़ा सा इंटेंस हो गया और 1-2 मिलीमीटर सरकाया। सी पेपर राइडर केम डाउन। तो यहाँ पर स्लोली मूवमेंट करने का। नाउ विल मेजर द वाइब्रेटिंग लेंथ। तो ये दो नाइफ एज के बीच में लेंथ अपने को मेजर करने का, और लेंथ अगर देखेंगे तो इट इज़ कमिंग एज 11.5 दिखा रहा है अपने को। सो इन दिस केस द वाइब्रेटिंग लेंथ फर्स्ट वन इज 11.5। वापस उसी ट्यूनिंग फोर्क के लिए अपने को करने का है, क्या पता मिस्टेक ना हो गया हो अपने से। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग इस पेपर राइडर को नाइफ एज के बीच में वायर पे रखना है, स्ट्रिंग पे, एंड विल टेक दिस नाइफ एज लिटिल बिट इनसाइड, 1-8 सेंटीमीटर उसको अंदर ले लेंगे। एंड अगेन विल रिपीट द प्रोसीजर। फिर ये प्रोसीजर रिपीट करना है अपने को। फिर स्लोली इसको बाहर निकालेंगे, slowly we move, and always try to maintain that paper rider exactly in midway of the knife edge.
धीरे से स्ट्राइक करेंगे तो भी गिर जाएगा. अगेन मेजरिंग द लेंथ बिटवीन द नाइफ एजेस, इट इज कमिंग एज 11.3 दिखा रहा है. सो नेक्स्ट रीडिंग इट इज कमिंग एज 11.3. तो इन दोनों का मीन लेंगे, इट विल कम एज 11.4. बाकी ये तो कैलकुलेशन वाला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे इसके अंदर. रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल, यू विल गेट दिस ऑब्जर्वेशन टेबल एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो. वीडियो के एंड में आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाई देगा. फिर नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क अपने को कंसीडर करने का है, तो इसको साइड में रख दिया, ये रीडिंग हो गया. नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर किया हमने. कंसीडरिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क, फिर इसको स्ट्राइक किया हम लोगों ने. और स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अगर वाइब्रेटिंग लेंथ मिल गया आपको, तो उसके बाद के फ्रीक्वेंसी का लेंथ उसके आगे ही रहेगा. इसीलिए हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं. वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अब लेंथ वापस नाइफ एज को शुरू में लाने की जरूरत नहीं है. वी शुड नॉट अगेन स्टार्ट विद द बिगनिंग. अब इसको धीरे से स्ट्राइक करेंगे एंड स्लोली वी मूव फर्दर. धीरे धीरे इसको सरकाएंगे आगे. देन वी विल मूव फर्दर. So there is a vibration in this paper rider. If you observe it carefully, paper rider में vibration हो रहा है, मतलब लेंथ नज़दीक है अपना. देखा, वाइब्रेट होकर गिर गया वो. कई लोग क्या होता है इसको ठोक के गिरा देते हैं, वैसा नहीं करने का है. इट शुड कम डाउन बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन. अब लेंथ अगर मेजर करेंगे तो इट इज़ कमिंग एज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर दिखा रहा है. सो फॉर दिस ट्यूनिंग फोर्क the length is coming as 13 centimeters. This is first length, 13 centimeter. Then same way next length you have to measure. Again you have to keep this paper rider between the knife edge. फिर से मैंने जैसा बोला है कि 1-8 सेंटीमीटर को अंदर लेंगे and we'll again repeat the same procedure for the same tuning fork. ये रखा, इसको स्ट्राइक किया. Then we'll move further. स्लोली इसको मूव करते जाएंगे. फिर से गिर गया. देन अगेन मेजरिंग द लेंथ. दिस लेंथ इज कमिंग एज 13.2 दिखा रहा है. सो दिस इज आवर लेंथ. और इसका अगर मीन लेंगे 13 एंड 13.2 का मीन लेंगे, दैट विल कम एज 13.1 सेंटीमीटर. सो सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क भी हो गया. देन विल कीप असाइड. नाउ नेक्स्ट विल कंसिडर another tuning fork of 320 Hz. तो इसके बाद लेंथ फिर और बढ़ता जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा वैसे वैसे वाइब्रेटिंग लेंथ बढ़ता जाएगा. वापस बिगनिंग शुरू से नहीं करने का. स्लोली मूव फर्दर. slowly the motion goes on. फिर आगे इसको मूव करेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इस एक्सपेरिमेंट में आपको पास पेशेंस होना चाहिए. ऐसे भी फिजिक्स प्रैक्टिकल में पेशेंस का बहुत ज़रूरत होता है. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मैं कभी भी 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाता, क्योंकि अगर एक बार थ्रेशोल्ड लेंथ क्रॉस हो गया तो फिर देन जो लेंथ आएगा वो ओवरटोन के लेंथ आएंगे और वो रॉन्ग होगा. देखो पेपर राइडर गिर गया. थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो रीडिंग मिलेगा. यू हैव केप्ट हियर, दिस रीडिंग इज शोइंग 18 सेंटीमीटर दिखा रहा है. सो लेंथ फॉर दिस इज कमिंग एज 18 सेंटीमीटर्स. अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर. वापस पेपर राइडर को रखेंगे on this string
एंड नाइफ एज को 1 आध सेंटीमीटर से अंदर लेंगे एंड अगेन रिपीटिंग द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर रिपीट किया, फिर धीरे धीरे वापस बाहर लेंगे। Slowly knife edge will be taken away from the another knife edge, that is you have to increase the distance between the two knife edges. फिर लेंथ गिर गया। Now measuring the distance between the knife edges and again it is coming as 18. तो sometimes it may happen that कि आपका रीडिंग रिपीट हो जाए, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। एक आध बार रीडिंग रिपीट हो सकता है, लेकिन हर बार रिपीट होगा ऐसा नहीं है। थर्ड ट्यूनिंग फोर्क भी हो गया, देन विल कीप असाइड। अब उसके बाद लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क कंसीडर किया, अब 256 है। तो सेम प्रोसीजर रिपीट हुआ, अगेन कीपिंग दिस पेपर राइडर ऑन द स्ट्रिंग, और उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क लिया, वापस स्ट्राइक किया, उसके ऊपर रखें। स्लोली विल मूव आउटसाइड। इसमें कोई मैजिक नहीं है, पेशेंस रखो, धीरे धीरे मूव करो, अपने आप आएगा रीडिंग। हल्का सा भी वाइब्रेशन अगर पेपर राइडर में दिख गया, इसका मतलब वाइब्रेटिंग लेंथ इज नियर टू दैट। वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है उसके अंदर, गिर गया वो। सो मेजरिंग दिस लेंथ, इट इज 22.2। तो इसके लिए अपने पास लेंथ आया 22.2। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, पेपर राइडर को वापस उस पर रखना है, कीपिंग दिस पेपर राइडर ऑन द स्ट्रिंग, एंड नाइफ एज 1 आध सेंटीमीटर से अंदर ले लिया। फिर वापस आपने प्रोसीजर वही रिपीट किया। स्लोली मूवमेंट होगा। ये आ गया लेंथ 22 दिखा रहा है इसके अंदर। सो लेंथ इज कमिंग एज 22, दैट मीन्स मीन इज कमिंग एज 22.1 सेंटीमीटर। फिर ये अननोन की बात आएगी, अननोन का कैसे कंसिडर करेंगे। अभी अननोन ट्यूनिंग फोर्क अपने पास दिया है, अभी मेरे पास तो इधर दिख रहा है इसका फ्रीक्वेंसी, आई कैन नो दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क। लेकिन एग्जाम में जब आपको दिया रहेगा तो यू विल नॉट नेवर कम टू नो दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। तो आप पहले इसको ट्यूनिंग फोर्क को आप अरेंज कीजिए, जो 4 नोन थे आपके पास, चारों को अरेंज किया हमने। उसके बाद एक आइडिया बताता हूँ, लॉजिक। इस लेंथ के हिसाब से अंदाजा आपको बैठ जाएगा कि ट्यूनिंग फोर्क आपका किस सेगमेंट में बैठ रहा है। तो मेरा सेकंड और थर्ड के बीच में बैठ रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में बैठ रहा है, मतलब माई ट्यूनिंग फोर्क शुड बी बिटवीन 426 एंड 380 हर्ट्स। इसका मतलब है या तो फिर वो 384 हर्ट्स होगा या तो 341 हर्ट्स होगा। अगर मुझे मालूम नहीं है तो आपको लेंथ मिनिमम 13 सेंटीमीटर के आसपास इसको एडजस्ट करने का, क्योंकि 426 का मेजर लेंथ वही आया था, उससे लेंथ मिलना ईजी हो जाएगा। विल कीप दिस पेपर राइडर हियर ऑन द स्ट्रिंग और इसको 13 सेंटीमीटर पे एडजस्ट करेंगे। देख लेते 13 सेंटीमीटर पे आया क्या, 13 पे लगभग लेके आया। एंड नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर। फिर वो प्रोसीजर आपको वैसे शुरू करना है, स्ट्राइकिंग दिस ट्यूनिंग फोर्क, स्ट्राइक किया, फिर इसको रखा इधर, स्लोली
जो प्रोसीजर मैंने बताया कि उसका लेंथ देख के अपने को समझ में आता है कि इसका लेंथ ट्यूनिंग फोर्क का साइज देख के समझ में आएगा व्हाट विल बी द वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क, क्योंकि 4 का पहली लेंथ हमने निकाल लिया है तो लेंथ ढूंढना आपके लिए ईजी हो जाएगा। अदरवाइज ये 1 मीटर के सोनोमीटर पे लेंथ निकालते निकालते परेशान हो गए। देखो पेपर राइडर गिर गया। नाउ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस इट इज कमिंग एज 15 सेंटीमीटर्स। तो मतलब अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे पास लेंथ 15 सेंटीमीटर आया। अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसीजर। फिर पेपर राइडर उठाया, वापस उसको स्ट्रिंग पे रखेंगे, नाइफ एज को थोड़ा सा अंदर ले लेंगे एंड रिपीट द प्रोसीजर। वापस थोड़ा सा बाहर लिया, स्लोली स्लोली नाइफ एज को बाहर लिया, बस एक टाइम पे 2-3 मिलीमीटर से ज़्यादा इसको मूव नहीं करने का। (14.8) दिखा रहा है तो लेंथ 14.8 आ गया। मीन ऑफ दिस इज 14.9 और ये फ्रीक्वेंसी अगर अननोन है तो इसका मतलब इसका NL भी नहीं आएगा। NL कैलकुलेट नहीं करना, 1/L सबका निकालने का रहेगा अपने को। अब ये कैलकुलेशन पार्ट अपने को करना है कि 1/L कैसे निकालने का और NL कैसे निकालने का। ना उसको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है अपने को। वील यूज लॉग टेबल एंड सी दैट हाउ दिस कैलकुलेशन विल बी डन। सबसे पहला काम है अपने पास रेसिप्रोकल लेना है इसका। अब रेसिप्रोकल लेने के लिए इशू ये है कि अगर आप रेसिप्रोकल के टेबल में जाएंगे, इफ़ यू गो विद द रेसिप्रोकल टेबल देन रेसिप्रोकल इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम 1 to 10। ये आपको 1 to 10 ही दिया है, लेकिन अपना वैल्यू कितना इधर 11.4 दिया है। तो कैसे होगा पॉसिबल? 1 to 10 है, बियॉन्ड इट इज़ दैट वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना होगा, वील हैव लिटिल बिट एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट क्या है इसके अंदर देखिए। आई वॉन्ट रेसिप्रोकल ऑफ 11.4, ठीक है, बट आई कैन फाइंड आउट रेसिप्रोकल फ्रॉम 1 to 10 ओनली। So I will adjust this decimal of the number, that is 1.14 into 10 करके लिख सकता हूँ। 1.14 into 10 is 11.4, जिससे मैं 1.14 का रेसिप्रोकल निकाल सकता हूँ। कैसे? रेसिप्रोकल टेबल में जब भी आएंगे तो ये 1.1 जो पहला 2 डिजिट है वो आपको पहले कॉलम में देखने का। यू कैन सी हियर 1.1 दिख रहा है इधर, और 1.1 का यहाँ पर 4th कॉलम दिख रहा है, और ये 4th कॉलम जो है वो इसमें देखने का है। ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम भी है इसके अंदर, लेकिन वो तब रहेगा जब इधर 1.14 के बाद भी कोई डिजिट होता तो, 4th डिजिट अगर होता तो। फिलहाल थर्ड डिजिट तक ही है, तो इसका मतलब 1.1 का 4 देखें, इट इज़ कमिंग एज 8772। अभी 8772 है, लेकिन इसको कैसे लिखने का है? तो उसमें उस रो के पहले नंबर को अपने को देखने का। उस रो का पहला नंबर देखेंगे तो इट इज़ गिवन एज 0.9091। अगर पहला वाला 0.9091 है तो इसका मतलब है थ्रू आउट दिस रो ऑल द नंबर्स विल बी पॉइंट फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर ये पहला वाला 0.9091, नेक्स्ट वन विल बी ऑल्सो 0.9009, दिस विल बी 0.8929, दिस विल बी 0.8850, दिस विल बी 0.8772 एंड सो ऑन, जिसमें अपना ये 8772 है। तो इसका रेसिप्रोकल अब मेरे पास आएगा 0.8772 अपॉन ये 10 रह गया। रेसिप्रोकल हमने इसका लिया 10, वैसे ही रहेगा। और इसका वैल्यू फाइनली कितना आ रहा है? इट इज़ 0.08772। यही रेसिप्रोकल का वैल्यू यहाँ पर टेबल में आके फिल करना है आपको, 0.08772। कैलकुलेटर मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करने का है, आपको कैलकुलेशन लॉग से ही करने का है। और लॉग में अगर किसी को इशू है तो अपने पास वीडियो ऑलरेडी है इसके अंदर लॉग पे, वो जाके देख सकते हो उसके अंदर हाउ टू डू दैट कैलकुलेशन विद द लॉग टेबल्स। नेक्स्ट वाला 13.1 है, तो फिर इसको वापस वैसे लिखेंगे 1/13.1 मतलब 1/1.31 इंटू 10, और 1.31 अगर देखेंगे तो 1.3 में जाइए और फर्स्ट कॉलम 7634 है, लेकिन पहला वाला पॉइंट में है तो ये भी 0.7634 होगा। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल आएगा 0.7634 अपॉन 10, दैट मीन्स 0.07634 आएगा। तो दिस रेसिप्रोकल इज कमिंग एज 0.07634। इन दिस वे आप रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर। नेक्स्ट वाला 18 है, 18 मतलब 1.8 का रेसिप्रोकल लेना है, 1.8 का 0 लेना होगा। दिस इज 0.5556, तो 0.5556 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.05556। फिर 22.1 है, तो सिंपल सी बात है 2.21 में जाने का है,
2.21 में जाएंगे तो ये आएगा वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज 4525, मतलब इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए 0.04525 आएगा। नेक्स्ट वन है 14.9, 14.9 मतलब 1.49, 1.4 में आइए, 9th कॉलम इट इज 6711, इसका मतलब 6711 का मतलब यहाँ पर आएगा 0.06711। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल। ना नेक्स्ट केस है अपने पास यहाँ पर एनएल का कैलकुलेशन करने का, और एनएल के लिए अपने को लॉग टेबल का इस्तेमाल करने का है। फॉर दैट यू हैव टू फिल दिस कैलकुलेशन टेबल। ये कैलकुलेशन टेबल आपको फिल करना है, वो ध्यान में रखना है। अभी कैसे कैलकुलेशन टेबल फिल करना है? लॉग का कैलकुलेशन सिंपल, जैसे आपने किया 11th में वैसे ही है। पहली ऑब्जर्वेशन के लिए कितना ऑब्जर्वेशन का एनएल आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू ए दिया है। अभी लॉग ऑफ एन कितना है इसका? 512 का लॉग लेने का है। 512 का लॉग लेने का मतलब इट इज 512.0। 512.0 तो मतलब डेसिमल के पहले कितना डिजिट्स है? 3 डिजिट्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1, मतलब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसका 2.3 था तो कैरेक्टरिस्टिक उसका 2 हो गया। फिर मैंटिसा पार्ट में कैसा होता है? 51 का 2 और 0, अपने को डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। विल गो विद द 51st रो। अभी यहाँ पर देखें 51st रो और सेकंड कॉलम। 51st रो का सेकंड कॉलम अगर देखें तो इट इज़ 7093, तो ये मैंटिसा इसका आएगा 7093। लॉग एल इज इक्वल टू बी दिया है, तो अभी यहाँ पर लॉग एल कितना है? 11.4। डेसिमल के पहले कितना डिजिट इसका? 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। फिर मैंटिसा देखते हुए तो आपको डेसिमल नहीं लेना है, मतलब 11th रो 4th कॉलम लेना है। तो फिर आइए इसमें 11th रो 4th कॉलम, 11th रो 4th कॉलम यहाँ पर वैल्यू कितना दिख रहा है? इट इज 0569, 0569। फिर यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी दिया है, तो दोनों को ऐड करो। 9 + 3 दैट कम्स अस 12, 1 कैरी, दिस इज 10 + 6 16, 1 कैरी, 1 + 5 दैट इज 6, 7 + 0 दैट इज 7, 2 + 1 दैट कम्स एज 3, 3.7662 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग ऑफ सी, मतलब इसका एंटी लॉग लेने का, और एंटी लॉग लेने के लिए अपने को मैंटिसा ही कंसीडर करना होता है। मैंटिसा में कैसा है कि ये 3.7662 दिया, लेकिन हम लेंगे 0.7662 का एंटी लॉग लेने का इसके अंदर। तो 0.76 6th रो 6th कॉलम और सेकंड मीन डिफरेंस इसके अंदर कंसीडर। तो कमिंग टू दिस एंटी लॉग, एंटी लॉग में आएंगे 0.76, तो 0.76 अगर देखेंगे तो इधर दिख रहा है, कैन सी हियर 0.76 इधर है। 0.76 का कौन सा कॉलम बोला है इसके अंदर? 6th कॉलम। ना 6th कॉलम ऑफ 0.76 इट इज कमिंग एज 5834, और उसका सेकंड मीन डिफरेंस है, सेकंड मीन डिफरेंस इज 3, तो 5834 + 3 5837 आएगा। तो एंटी लॉग इट इज कमिंग एज 5837। कैरेक्टरिस्टिक इज 3, तो डेसिमल विल बी आफ्टर 4 डिजिट, 3 + 1, 3 + 1 4, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसका मतलब 5837.0। एंड सेम एंटी लॉग दिस 5837 विल बी रिटन हियर, ये आएगा इधर 5837। ये हो गया आपका एनएल का वैल्यू। ऐसे ही बाकी का कॉलम इसके अंदर फिलअप करने का है, एंड दैट विल कंप्लीट योर टेबल, और उसके बाद एनएल आएगा। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर ग्राफ वाला है। स्टूडेंट्स, नाउ ग्राफ पोर्शन वाज रिमेनिंग एंड कैलकुलेशन पोर्शन वाज रिमेनिंग। सी वी हैड डन दिस कैलकुलेशन ऑफ द फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम का कैलकुलेशन अपना हुआ है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम का कैलकुलेशन बाकी रह गया है। नाउ इट इज रिमेनिंग। नाउ हाउ टू डू द कैलकुलेशन? लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ, तो वंस अगेन वील कंप्लीट दिस टेबल एंड वील सी दैट हाउ दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग ऑफ एन की बात हो रही है। लॉग ऑफ एन मीन्स for second observation log of 426 will be considered. Now when we consider log of 426, that means here we want to find out log of 426.0. That means before decimal point there are 3 digits, so characteristic for this particular number will be given as 3 - 1 as 2. तो मतलब यहाँ पर अपने पास कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए 2। फिर इसके बाद आएगा मैंटिसा, मैंटिसा फॉर 426। इन लॉग टेबल वी विल बी सर्चिंग फॉर 42 रो 6th कॉलम। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लॉग कैलकुलेशन, वी हैव वीडियो ऑन दिस लॉगरिथम ऑल्सो, यू कैन हैव दैट वीडियो, यू कैन लुक एट दैट एंड यू विल बी क्लियर विद द कैलकुलेशंस। 426 मतलब 42 रो एंड 6th कॉलम, 42 रो 6th कॉलम, दैट इज
6294. So this 6294 will be considered here. Then log of L is given as 13.1. Before decimal there are 2 digits, that means characteristic will be 1. For Mantissa you have to look for 13th row first column. Now in this 13th row first column it is 1173. So 1173 is the Mantissa of this one. Then we have A plus B is equal to C. Addition of A plus B means 4 plus 3, that is given as 7, 9 plus 7 that comes as 16, 1 carry, 3 plus 1 that is given as 4, 6 plus 1 that is 7, 2 plus 1 that is 3. It is 3.7467. Anti-log for this one, we'll go for anti-log table, and in anti-log table you have to search out the value which is given in Mantissa. हम anti-log में सिर्फ Mantissa ही देखते हैं, that is 74th row 6th column 7th mean difference. Now if you can see here 74th row 6th column, 74th row and 6th column, if you can see here the value is 5572. Then 7th mean difference 5572, and for the 7th mean difference is given as 9. 5572 plus 9, that means 5581. After adding, value will come as 5581.0. 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है. जैसे इसको किया फिर नेक्स्ट वाले के लिए 320 मीन्स 320.0. बिफोर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक शुड बी 2, यानी कि यहाँ पर होगा 2 पॉइंट. Then you have to look out for Mantissa of 320. Mantissa for 320, that means we will look at for the 32 row 0th column. 32 row 0th column, the value is 5051. You can see here it is 5051. So it is 2.5051. Then log of L for third observation, it is 18. 18 means 18.0. That means before decimal 2 digits. So characteristic will be given as 1. So it is 1 point. log के लिए फिर अपने को 18th का 0 column देखना पड़ेगा. 18th का 0 column it is 2553. So here Mantissa comes as 2553. Then addition A plus B, 1 plus 3 that is 4, 5 plus 5 that is 10, 1 carry, 0 plus 1, 1 plus 5 that is 6, 5 plus 2 that is 7, 2 plus 1 that is 3. It is 3.7604. Now we will look at for anti-log of 76th row 0th column and 4th में difference. तो फिर अपने को जाना है anti-log में 76th row 0th column 4th mean difference. Now you can see here 76th row, this one 0th column it is 5754 और उसका 4th mean difference चाहिए. 4th mean difference is 5. तो 5754 plus 5, that means it is 5759. So anti-log comes as 5759. 0.0 हो जाएगा because characteristic is 3, so decimal point will be after 4 digits. Same with for fourth observation, log of n 256 is given to you, that means 256.0. 256.0 मतलब before decimal 3 digits, so characteristic here also it will come as 2. For log you have to go for 25th row 6th column. 256 का मतलब है 25th row and 6th column. Now in 25th row 6th column, if you can see here the value is 4082. Mantissa is coming as 4082. Then log of L. Log of L, if you can see here, for this is 22.1. मतलब before decimal how many digits? यहाँ पर अपने पास 2 digit है, तो characteristic will come as 1. 22 row first column will be the Mantissa. 22 row first column it is 3444. 3444 is the Mantissa part. Addition of this one A plus B, that is 2 plus 4, it comes as 6. 8 plus 4 it comes as 12. 1 carry, 1 plus 4 that is 5. 4 plus 3 that is 7. 2 plus 1 this is 3. Now we will go for anti-log, and for anti-log we have to search out for the 75th row second column 6th mean difference. 75th row second column 6th mean difference. So 75th row second column and 6th mean difference. 75th row second column it is given as 5649. For that we have 6th mean difference, that is given as 8. 5649 plus 8. 5649 plus 8, that means it is 5657.
5657.0. So we have got this NL and this NL should be reflected here in this table. वही NL इधर reflect होगा. First one 5837, next one is 5581. For next one it will be 5581. Further 5750, 5759 sorry. Further it is 5657. This is our NL value. Then mean of NL will be calculated. Mean NL will be given as addition of this value, that is 5837 plus 5581 plus 5759 plus 5657 upon 4. In addition, this is 7 plus 9, 16 plus 1, 17, 17 plus 7, that is 24, 2 carry, 2 plus 5, 7 plus 5, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 3, that is 23, 2 carry, 2 plus 6, 8, 8 plus 7, 15, 15 plus 5, 20 plus 8, that is 28, 2 is carry, 5 plus 2, 7, 7 plus 5, 12 plus 5, 17, 17 plus 5, 22, that is 2, 2, 8, 3, 4 upon 4, and dividing by 4, 4 5s are 20, 2 is remaining, 28, 4 7s are 28, 3 will not go by 4, that is 0, 34, that is 4 8s are 32, 2 is remaining, that is 4 5s are 20. So 5708.45 is mean value of Hertz centimeter, that is of NL. This is the value for your mean NL. Now we can find out this mean NL by using graph also. What you have to do that in graph paper, on x axis we will be considering n and on y axis we will be considering 1 by L. 1 by L ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, इसी को चारों को यूज करना है. एंड फिफ्थ वाले में यहाँ पर NL नहीं आएगा बिकॉज n इज अननोन फॉर अस, दैट इज केप्ट एज इट इज. ये 1 by L का वैल्यू यहाँ पर यूज होगा y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस में. नाउ हाउ टू डू द ग्राफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राफ में भी ट्रबल में रहते हैं. नाउ विल सी दैट हाउ द ग्राफ पार्ट विल बी डन. फर्स्ट विल कंसीडर अवर x एक्सिस ऑन विच n will be plotted. Take a horizontal line, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया हमने. Horizontal line for frequency axis and vertical line 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो भी चलेगा. So the physical quantities on x axis it is given by n, physical quantity on y axis is given by 1 by L. Here we can see that the NL value maximum is 512. तो अपने को 512 इसके अंदर प्लॉट करने का है. What I will do that, I will consider every centimeter is equal to 50 hertz. So 50, this is 100, 150, this is 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 and 550, 600. This is how the plotting will be done. That is on x axis I have considered 1 centimeter is equal to 50 units. And on y axis I want to plot 1 by L और 1 by L का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो it is 0.08772, 0.07634, 0.05556, 0.04525. Maximum value is 0.08772. If you want you can write down this as 8.772 into 10 raised to minus 2, ऐसा भी लिख सकते हैं. डेसिमल शिफ्टेड बाय 2 डिजिट. मतलब इधर प्लॉट करना अपने लिए आसान होगा. तो फिर इसमें क्या करेंगे, I can consider this as 1 by L is multiplied common with 10 raised to minus 2. All these values will be considered as per order of magnitude as 8.772. इसको लेंगे 7.634, it will be 5.556, this will be 4.525. मतलब मैक्सिमम मुझे 8.7 चाहिए इसके ऊपर वैल्यू. 8.7 चाहिए तो एक काम करेंगे, फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर आई विल कंसिडर वैल्यू एज 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 and this is 8 and this is 9. Now plotting of these points for 512 8.772 चाहिए. 512 अभी यहाँ पर कैसे आएगा, 512 मतलब 512 चाहिए. तो अगर 1 सेंटीमीटर, इसका स्केल भी लिखना होगा.
we write on the scale. Scale is given as, on x-axis we have considered 1 centimeter is equal to 50 hertz, and on y-axis 1 centimeter is equal to 0.5 होगा ये, that is 0.5 because 2 centimeter को 1 लिया, 0.5 into 10 raised to minus 2. This is what the scale for y-axis. ठीक है, पहला वाला है, अगर 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर तो 1 मिलीमीटर विल बी 5. 500 के बाद अगर 1 मिलीमीटर सरकाएंगे तो 505, अनदर मिलीमीटर 510, अनदर मिलीमीटर 515, और अपना वैल्यू है 512. इट इज़ बिटवीन 510 एंड 515. तो इन दैट केस आइदर यू कैन कंसीडर 510 और 515, दोनों में से कोई भी एक लाइन कंसीडर करते, बीच में नहीं प्लॉट करने. आइदर यू कंसीडर 510 और 515. तो अभी सपोज अगर मैंने 510 कंसीडर किया, मतलब 2 मिलीमीटर के लाइन पे इसको लेके चलने के, और वैल्यू क्या चाहिए यहाँ पर, 1/L का वैल्यू यहाँ पर दिया है 8.772. 8.772 मतलब ग्राफ पे अगर देखेंगे ये 8 हो गया, हर 2 मिलीमीटर पे 1 जाएगा, दैट इज़ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, और अपने को चाहिए 8.7. तो 8.7 और 8.77 मतलब 8.8 राउंड ऑफ करके कंसिडर कर सकते. दैट मीन्स दिस इज़ द पॉइंट. यहाँ पर अपने को होगा ये 0.5 मिलीमीटर के ऊपर वाला लाइन कंसिडर करने का, एंड दैट लाइन विल बी कंसिडर्ड हियर. ये इधर जाके पॉइंट आएगा. दिस इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 512 एंड 8.77. नेक्स्ट वन 426 के लिए 0.76 मतलब 7.6 चाहिए अपने को. 426 के लिए 400 हो गया, 1 मिलीमीटर 405, 410, 415, 420, 425. ये आपका 425 कंसीडर हो गया ना. इस 425 के लिए अपने पास 1/L का वैल्यू 7.6 है. ये रहा 7, दिस इज 7.5. 7.6 मतलब उससे 2 मिलीमीटर और ऊपर. सो दिस विल बी कंसीडर्ड हियर. ये इस तरफ आएगा, ये रहा पॉइंट. इधर से 426 मतलब 425 हो गया, और ये 7.6. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 320, 5.55 मतलब 5.6 ले सकते राउंड ऑफ करके. 320 ये 300 हो गया, 1 मिलीमीटर के लिए 305, 310, 315, 320 मतलब 4 मिलीमीटर पे अपना मार्किंग हो गया. ठीक है, और 1/L का वैल्यू इसके लिए 5.6 लेना है आपको. दिस इज़ 5, 5.5, दिस इज़ 5.6. इस लाइन पे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट 256 के लिए 4.5 कंसीडर करना है. 256 मीन्स 200, 250, इसमें 5 मिलीमीटर और लेंगे, दैट इज़ 255 हो गया. मतलब 256 के राउंड में एग्जैक्ट 256 तो मिलेगा नहीं. एंड दिस इज 4.5. 4.5 मीन्स दिस इज द लाइन वेयर विल बी कंसीडरिंग. ये पॉइंट्स हो गए, एंड यूजिंग दिस यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ सच दैट द ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ होना चाहिए. दिस ग्राफ शुड बी पासिंग थ्रू ओरिजिन. यू कैन यूज बिग स्केल, बड़ा वाला स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं. एक पॉइंट छूट रहा है चलेगा. वी शुड ट्राई टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ. अब इसके बाद इसमें NL का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 1/L को यूज़ करके आप अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. अभी 1/L यहाँ पर कितना दिया है, 0.6711 मतलब 6.7 है. तो ये 6.7 का मार्किंग करो. 6, 6.5, 6.6, 6.7 इधर रहा. 6.7 की मार्किंग अपने को करना है यहाँ पर. नाउ सी मार्किंग क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन आगे प्रोसीड करेंगे. जहां पर भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट से आपको नीचे लाइन ड्रॉ करने का. द पॉइंट वेर एवर इट इंटरसेक्ट्स विथ ग्राफ, वहां से डॉटेड लाइन नीचे कंसीडर करने का. एंड दिस विल गिव यू
the unknown frequency is equal to, if you can see here, 400 से यहाँ पर 5 कम 395 और 5 कम 390 और 5 कम 385 और लास्ट में इधर 380 आ रहा है. दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस as 380 hertz. Most probably the tuning fork must be of 384 hertz. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमने नोट तो किया नहीं, बट वो 384 हर्ट्स का बीच वाला वैल्यू कंसीडर किया हम लोगों ने. 380 हर्ट्स आ गया. और एनएल कैलकुलेट करने के लिए आप किधर भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते. यू कैन कैलकुलेट स्लोप एनीवेयर. सपोज यहीं पर अगर मैं कैलकुलेट किया, ड्रॉ अ ट्राइंगल फ्रॉम एनी पॉइंट. जनरली द फॉर्मूला फॉर स्लोप इज y2 माइनस y1, बट एनी ग्राफ विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका स्लोप अगर निकालना रहेगा तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. स्लोप इज गिवन एज द इंटरसेप्ट मेड अलॉन्ग y एक्सिस. अभी इंटरसेप्ट अलॉन्ग y एक्सिस मेजर करो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 6.4 है. दिस इज इंटरसेप्ट मेड अलॉन्ग y एक्सिस. देन इंटरसेप्ट मेड अलॉन्ग x एक्सिस, दैट इज 1 2 3 3.5. देन 6.4 वॉज अलॉन्ग y एक्सिस, और y एक्सिस का स्केल ऑफ मेजरमेंट हमने कंसिडर किया, इट इज 0.5 इंटू 10⁻². उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 इंटू 10⁻². और x एक्सिस का यहाँ पर लिया 50. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन इसके अंदर करने के. दिस इज 6.4 इंटू 0.5 को अगर 5 लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.5 इंटू 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10. 5 इसका कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली दिस विल बी 6.4 अपॉन 3.5. अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁴. जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करना है. देन NL बाई ग्राफ विल बी कैलकुलेटेड, और उसके लिए अपने को इसका रेसिप्रोकल लेने का 1 अपॉन स्लोप. जो भी 1 अपॉन स्लोप आएगा दैट विल बी द वैल्यू, दैट इज इसका जो स्लोप को कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा अपने को NL का वैल्यू, एंड दैट शुड मैच विथ योर मीन NL. दैट इज ऑल अबाउट योर सोनोमीटर लॉ ऑफ लेंथ.